हम पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत सोचने का वक्त है। पाकिस्तानी कौम अब तौबा कर ले, अपने आप को दुरुस्त करो, मामलात को, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक दफा अगर मोदी दाखिल हो गया फिर ये निजाम खुद ही भग से उड़ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, हम गज़वाए हिंद के बारे में बात करते हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर हमारे हालात जो कि मुल्क के कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सिस्टम चल रहे हैं, क्या हम गज़वाए हिंद करने के काबिल हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर? मौजूदा टाइम के अंदर तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि मुसलमानों के वो कमज़ोर हो गए हैं ईमान। आपने हैदर टैंक बनाया, आप हैदर टैंक बनाते हैं, आप अल खालिद टैंक बनाते हैं, आपके पास हतफ है, आपके पास गौरी है, आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो ये किस लिए है? कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। सर, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करें। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। বন্ধুরা, আপনারা তো রিসেন্ট অবশ্যই শুনেছেন ভারত MIRV টেকনোলজির সাথে যুক্ত করে ভারতের অগ্নি-5 মিসাইলকে টেস্ট করেছে। এর পরে থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান ভেতর থেকে নড়ে চড়ে বসেছে। তাদের দাবি যে আজকের দিনে ভারতের এই সমস্ত মিসাইলের পরীক্ষা করার কি মানে, তারা কি মেসেজ বা দিতে চায়, তারা কি ফাইনালি আমাদের উপরে এই মিসাইল দিয়ে আক্রমণ করবে? তো এমন টাইপের অনেকেই বেহাদাপনা কথাবার্তা তাদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, পাকিস্তানকে যদি ধ্বংস করতে হয় বা উড়াতে হয়, তার জন্য আমাদের এত দামি বা অ্যাডভান্স লেভেলের মিসাইলকে প্রয়োগ করার কোনো দরকারই পড়ে না। কেননা আমাদের কাছে যে অগ্নি সিরিজ, পৃথ্বী সিরিজ, এমনকি যে আমাদের যে ব্রহ্মস মিসাইল আছে সেইগুলো যথেষ্ট। এমনকি আপনাদের তো এটাও মনে আছে ভারতের ব্রহ্মস মিসাইল মিসফায়ার হয়ে পাকিস্তানের মেয়াচুন্ন এলাকায় গিয়ে পড়ে। সেই খবরটা 48 ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও পাকিস্তান বোঝা তো দূরের কথা, তারা জানতেও পারেনি তাদের ঘরের ভেতরে ভারতের মিসাইল এসে অ্যাটাক করেছে। কপাল ভালো, সেই সময় পাকিস্তানের জনতা তারা পাগল হয়ে গিয়ে তারা রিপোর্ট করে যে ভারতের মিসাইল পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে হামলা করেছে। নসিব ভালো সেই মিসাইলে ভারতের কোনো ওয়ারহেড লাগানো ছিল না। ওয়ারহেড থাকলে তাদের অবস্থাটা কি হতো তারা ভালোই বুঝতে পারত। সেই টাইমে তারা বুঝে গেছিল তাদের কাছে যে সমস্ত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আছে, তাদের কাছে যে রাডার সিস্টেম আছে, এমনকি এই মিসাইলকে প্রোটেক্ট করার জন্য যা যা দরকার সবকিছু ব্যর্থ। এমনকি পাকিস্তান এটা বের করতে 4 দিন লাগিয়ে দিয়েছিল যে এটা কি মিসাইল আর মিসাইলটা আক্রমণ কিভাবে করলো। যাই হোক, এত কিছুর পরেও পাকিস্তানের কাছে এতটা ক্যাপাবিলিটি নেই যে ভারতের ব্রহ্মস বা অন্য মিসাইলকে থামাতে পারে। তার থেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, পাকিস্তানিরা এটা একদমই বুঝতে পারছে না। আরে ভাই, অগ্নি-5 মিসাইল MIRV এর সাথে যুক্ত করে টেস্ট করে এটা পাকিস্তানকে ওড়ানোর জন্য বা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য নয়। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের কাছে অগ্নি-1, অগ্নি-2, এমনকি পৃথ্বী, এছাড়াও আমাদের কাছে ব্রহ্মসই যথেষ্ট পাকিস্তানকে ওড়ানোর জন্য। আমাদের এই মিসাইলকে বানানো হয়েছে শুধুমাত্র চীন আর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিকে মেসেজ দেওয়ার জন্য। কেননা আমাদের টার্গেট শুধু পাকিস্তান বা চীন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। আমরাও চাই যে প্রয়োজন পড়লে ভবিষ্যতে আজ আমার সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক আছে, সেটা ভালো নাও থাকতে পারে, তখন কাউন্টার করার জন্য এই সমস্ত মিসাইলগুলো অবশ্যই রাখবে। দেখুন, জিওপলিটিক্সে আজকের দিনে কেউ কারো বন্ধু নয়, আবার কেউ কারো পার্মানেন্ট শত্রু নয়। কে কার বন্ধু হবে, কে কার শত্রু হবে, সেটা তো নিজের স্বার্থ, জিওপলিটিক্স আর সময়ের উপর ডিপেন্ড করছে। যেটাই হোক, পাকিস্তানিদের এই MIRV যুক্ত অগ্নি-5 এর মিসাইলকে নিয়ে একদমই চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কেননা ভারতের এর থেকে কম রেঞ্জের সাধারণ মিসাইলগুলোই তারা ট্র্যাক করতে পারে না। এই মিসাইলকে তারা কিভাবে থামাবে? পাকিস্তান ভারতের এই মিসাইলকে কাউন্টার করার জন্য না জানি তাদের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে যে সমস্ত মিসাইলগুলো ভান্ডারে যুক্ত আছে সেইগুলো নিয়ে তারা এখন আলোচনা করতে শুরু করেছে। যাই হোক, পাকিস্তানের মিসাইল আর চীনের মিসাইলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কেননা ওটাই তো তাদের সাপ্লাই করে। আর এই সমস্ত মিসাইলগুলো কতটা অ্যাকুরেসি আর কতটা কার্যকর সেটা আপনারা ভালোভাবে জানেন। যুদ্ধের সময় সেটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটিকে দেখুন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। पाकिस्तान इस वक्त OIC और इंटरनेशनल फोरा पर वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो 1947 में कायदे आजम ने, 1948 में कायदे आजम ने और बानियान पाकिस्तान ने किया था। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान कंप्रोमाइज है और पाकिस्तान अमेरिका के डर से, पाकिस्तान की हुकूमत IMF के डर से, पाकिस्तान की हुकूमत यूरोपीय यूनियन और यूरोप के कुछ ममालिक के डर से वो आवाज नहीं उठा रहा जो कि पाकिस्तान का हक है और जो पाकिस्तान के अवाम हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान से तवक्को करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी गुलामाना है, बुज़दिलाना है और डरपोक
डरपोक पॉलिसी है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और IMF के खौफ से पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तानी अवाम की जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रही। पहली बात तो यह है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया, क्लेम 5,000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8,000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे यह जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाज ममालिक भी इसके यानी कि इसकी जद में आ सकते हैं। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप उन्होंने की है, ये कमिटमेंट और इस सलाहियत में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, ये इस बात का टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और सबूत प्रोवाइड करता है कि उसके अहदाफ सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है NFU या नो फर्स्ट यूज के हवाले से, वो ये है कि वो रेडी टू फायर जब रखना चाहता है न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मेटेड कंडीशन में 5,000 से ज्यादा रेंज तक, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन टेक्निकली एक्वायर भी कर चुका है और उसको मेंटेन और ऑपरेशनलाइज भी करना चाहता है, जो कि इस बात का सबूत है कि अब नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकेंड स्ट्राइक की जो डॉक्ट्रिन का क्लेम था, अब वो किस्सा पारीना बन चुका है। हमारा जो डिटेरेंस है उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस टेस्ट की खास तौर पे, और जिस तरह भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है अमेरिका से और बाकी मगरबी दुनिया से, तो पाकिस्तान हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है, और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ। हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। पाकिस्तान कहता है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे बिकॉज कि हम कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं रखते इंडिया के मुकाबले में। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके बहुत ज़्यादा ग्लोबल कनेक्शंस हैं, उनके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, दोस्तियां हैं उनकी। हमारे पास तो वो सिचुएशन नहीं है। So we just cannot wait for the moment. So we will have to go for a nuclear. इंडिया का 2023-24 का जो बजट है that is 13% of its budget, जो उन्होंने तकरीबन $73 बिलियन के करीब, $74 बिलियन के करीब जो उन्होंने लगाया फौज के ऊपर। पाकिस्तान प्रेफरेबली अबाउट $6 to $7 बिलियन जो है वो अपनी डिफेंस के ऊपर लगाता है, और इंडिया की जो फौज है दैट इज़ द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एज जो कि वो कहते हैं, जिसमें US, रशिया और चाइना जो है वो आगे हैं। बाकी दिस इज़ एज पर द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें। In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. India can buy the military hardware from Europe, USA, Israel, anyone. India जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है, तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना है जी हमें ये दे दे, and they will get that. So they put the money on the table and they get this. जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज ले आते हैं वहाँ पे, मिलिट्री टॉयज। सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है, आप देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़ा सा एयरक्राफ्ट है। सो जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है। सो जब इंडिया ने ये किया तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो तो न्यूक्लियर वेपन्स बड़े स्केल पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट इन केस इंडिया डज दैट, सो आई थिंक फिर पाकिस्तान ने एक मिसाइल था नसर के नाम से, वो पाकिस्तान ने बनाया। उसी को 60-70 किलोमीटर रेंज थी, बट दैट वाज कंसिडर्ड एज ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ठीक है जी, जिसमें शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन है कि जिसमें वो थोड़े एरिया के ऊपर नुकसान करेगा, बट इट विल बी अ न्यूक्लियर, ठीक है जी।
ये चीज़ जो है उन्होंने की, पाकिस्तान ने की, ताकि इंडिया को मजीद रोका जा सके। বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটিকে দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। এর সাথে সাথে আপডেট ইন্ডিয়া বাংলার মতন আরো একটি চ্যানেল আছে যেটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া আপডেট। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।